Now, what exactly data scientist is, why I'm, let's say, highlighting that particular thing, why I'm saying that I'm a data scientist. The reason behind is that, see, as a data analyst, I do work on data analytics role. I do work on BI role. I do work on data science role, which include also data engineering and machine learning, which is machine algorithms. Okay. So that is what actually my role is. I also do have projects which are being done on AI and basically image related things. So I do have worked on that. It's not that much of extensive work that I have done, but it's nothing that I can boost it. So I haven't mentioned over here. But yes, I have done lots of work on DML, DA, DPI. So basically, why I'm introducing myself in this portfolio, the reason behind is that you should know that the person who is, let's say, educating you or who is giving you a trainer, or let's say, as a trainer who is going to be introducing you, that person should be eligible or that should be capable of certain knowledge that if it's delivering, isn't it? So for that purpose. Now, I am Deepak Bhatlavande over here. I do work with Arbor Academy. What Arbor Academy is again? Arbor Academy is an IT training institute and placement center where you will give ample amount of knowledge and will be giving ample amount of opportunities for new roles, new opportunities, and obviously your dream job also. As and how Power BI is one of a lucrative job. Okay, it's not something आई भाई जो भी आपको जॉब मिल गया जो भी एक पोस्ट मिल गया ऐसा कुछ नहीं है. ओके, Power BI is one of a lucrative job opportunity where you will get a good amount of salary and you will be considered as a good amount of role, isn't it? एक reputed role भी है. So that is what we are going to do over here. Learning Power BI will give you lots of let's say will open lots of opportunities. Okay, and how it works, yeah, we will do and we will understand that also. So basically, this placement this placement institute and training institute and placement institute, which is called as an Arbor Academy, has lots of perks. Okay, for example, you will say we have lots of USPs, not UPS, but USPs. USP over here stands for unique selling points that we will be providing you or will be, let's say, sharing with you in terms of learning, in terms of notes, in terms of education, in terms of tools, in terms of knowledge, in terms of project. We'll get lots of new things. So let me begin with this all details one by one, isn't it? So again, welcome everyone. Uh, Hearty welcome from my side. So what exactly is Arbor over here? Okay, Arbor is again Academy, which is an online IT course provider based in Pune, which specifically offers a wide range of courses. Not only with this Power BI, you can say MIM, you can say data analytics, you can say data scientist, you can say Power BI is one of example. Python, MS Excel, lots of things are there. So we do provide that. Now, based on this, all knowledge on all the career experiences that we have created a personalized action plan to help you achieve your goal. Okay, to prepare you. Okay, so to prepare you in such a way that whenever you will get, let's say, get out of this particular, or let's say when you will be completing this particular, you will have a good amount of opportunities in your hand. Okay, now what key features will there be for us? So flexible learning, it is obviously there. You're working on an online session or online courses is there. So it's very easy for you to sit on your um, reliable place, on your flexible place, on your let's say easier pace. आप आराम से बैठ के यहाँ पे बैठ सकते हो कुशन पे है सोफे पे बेड पे wherever you want you can get that also. So comfortable is there. And again आप कोई भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हो चूज कर सकते हो लर्न कर सकते हो देयर इज अगेन क्योंकि हम अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे व्हेन आई एम सेइंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अगर आप यूज करोगे देखने के लिए रिकॉर्डिंग का रेफरेंस करोगे तो आप कैसे भी कभी भी यूज कर सकते हो कौन से भी डिवाइसेस एक्सेस कर सकते हो. यस ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के अलावा जब आप लाइव सेशन में होते हैं लाइव कनेक्ट जब होते हैं ऑब्वियसली लाइव कनेक्ट ही हमारा सेशन ज्यादा रहता है पर अगर इन केस अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो उसके अलावा कभी भी लाइव रहोगे तो मेक श्योर कि आप आपके सिस्टम सिस्टम बेसिकली उसे कहते हैं हम हमारे डिवाइस को ओके जो लैपटॉप है बेसिकली हम उसे कंसर्न करेंगे तो आपके सिस्टम के साथ में आप रहिएगा क्यों देखो पावर बीआई का आपको थियरी पावर बीआई एज अ टूल विच इज अगेन इट्स अ टूल इट्स अ प्रैक्टिकल टूल जो आपको अप्लाई करना होता है वहां पे थियरी बहुत लेस ओनली 20% ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन थियरी होता है. ओके और उतना तो मैं आपको चलो पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर भी कर दूंगा लेकिन उस थियरी को जो आपने यूज किया उसको अप्लाई करने के लिए जो 80% ऑफ नॉलेज है जो आपको अप्लाई के बेसिस में करना है प्रैक्टिकल बेसिस में करना है उसके लिए आपको डिवाइस लगता है लैपटॉप लगता है लैपटॉप पीसी जो भी है डिवाइस लगता है.
सो मेक श्योर कि जो 20% आपको डिटेल्स दूंगा या 10% 20%, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आप लैपटॉप साथ में रहना चाहिए सेशन में। आपको लैपटॉप लेना है, वो सेशन में आप खुद ब खुद, मैं जो वर्कआउट करूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं प्रोसेस करता हूं, आपको वही वहां पे कॉपी भी करना है साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड, ताकि उस समय में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं, वो वही के वही क्लियर हो जाए तो बेटर होता है। हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे डिवाइस में, मेरे सिस्टम में वो जो प्रॉब्लम है वो अकर ही नहीं हुआ है। क्यों? मेरे शायद सिस्टम में मैंने पहले उसे रिजॉल्व करके रख दिया होगा, सो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आपके सिस्टम में शायद वो आए ना, तो ऐसे केस में आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिखेगा, मुझे तो याद नहीं रहेगा। सो आई हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम है तो मैं रिजॉल्व, यस ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन मेरे को याद रहेगा। सो आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम है तो आपको दिखाना है, आपको आपका स्क्रीन शेयर करना होता है, आपको आपका कैमरा ऑन करके रखना पड़ता है, हर बार नहीं, बट एनीवे इफ अगर कभी पूछा जाता है तो करना भी पड़ता है। जैसे आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो उस समय में जरूर करना पड़ता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, इस तरह से। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस वर्क, जिसे कि लाइव प्रोजेक्ट के बेसिस में कहते हैं ना, बहुत लोगों को कंसर्न होता है कि सर हम लाइव प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सी, लाइव प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है कि जो अभी हम मार्केट में किसी क्लाइंट के साथ में कर रहे हैं और उसी में आपको हम वर्क देंगे। ओके, इट्स वेरी रेयर एंड इट एक्चुअली डजंट हैपन लाइक दैट आल्सो। यस, बट व्हाट लाइव प्रोजेक्ट ओवर हियर, और लेट्स से लाइव प्रोजेक्ट over here means is that, okay, this project that we are going to give you is recently been submitted or recently been done, और जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो मार्केट में क्या है ट्रेंडिंग है, जिसपे पूरा मार्केट वर्कआउट कर रहा है, उस तरह की हम चीजों पे वर्कआउट करेंगे। यस ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या है, आप जब बाहर जाओगे, सिंस यू हैव वर्कड ऑन ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट, आपको क्या होगा, डिमांड होगा कि इस बंदे को जो ट्रेंडिंग नॉलेज, जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, सो यू विल वर्क ऑन इट। ओके, इस तरह से दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मेक इन इंडिया, इंडिया तो आपको सबको पता है, मेक इन इंडिया इस पर्टिकुलर मोटो के हिसाब से, इस पर्टिकुलर लेट्स से कह सकते हैं कि जो स्लोगन है इसके बेसिस में, लॉजिस्टिक एरिया, लॉजिस्टिक जो फील्ड है ये बहुत बूमिंग चल रहा है, इट्स वेरी हाई बूमिंग पे काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि मेक इन इंडिया है ना, तो सबके सब जगह क्या करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। ओके, क्यों? वहां पे लैंड एक्विजिशन है, लैंड एक्विजिशन मतलब क्या हो गया, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन में आ गया, फिर वहां पे क्या हो गया आपका, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, तो ऐसे करके यूपी में इतने सारे चीजें, इतने सारे वर्कआउट हो रहे, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ओके, आप उसे इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, उतना उसका एक्सपेंशन चल रहा है। सो लाइक दैट वी विल हैव रियल लाइफ सिनेरियोस। ओके, तो वो आपके लाइफ प्रोजेक्ट में आपको जरूर दिखेगा। ऑलरेडी वी हैव फूड करके एनालिसिस है, यस वी आर डूइंग ऑन दैट, फूड फूड का एक प्रोजेक्ट हमारा उस पर भी चल रहा है। देन लॉजिस्टिक, यस ऑब्वियसली है, सोशल मीडिया, ओके, अभी करंट सोशल मीडिया के बेसिस में क्या चल रहा है, यस वी हैव दैट ऑल्सो। तो इस तरह से करंट सिचुएशन के बेसिस में बहुत सारे हैं, विल वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट्स। नाउ प्रोजेक्ट देने के बाद में ऐसा होता है कि अभी आप कर लो, नहीं, it is guided, educated and obviously mentored, मेंटोर कर दिया जाता है उसे। उस पे क्या होता है, एक पर्सन मेंटोर होता है जो आपके ग्रुप्स को, फॉर एग्जांपल पकड़ लो 6 से अगर 10 ग्रुप, एक ग्रुप का पकड़ लो 10-10 लोग हैं, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स बनते हैं 10-10 लोगों के, इस ग्रुप को भी मेंटोर हैंडल करता है क्या चल रहा है, इस ग्रुप को मेंटर हैंडल करता है, मतलब आपका रिपोर्टिंग मेंटर से होता है। आपको मेंटोर को अपडेट करना होता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे आपको कभी कभी ना इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने ऑनलाइन या फिर आपने आपके प्रोजेक्ट में कैसे कैसे रोल और कौन से टीम मेंबर थे, कैसे कैसे वर्कआउट होता था, किस किस तरह के रोल हैंडलिंग किए जाते थे। यस, वो आपको अच्छे से नॉलेज आएगा। टीम, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आप दिन में कितने कॉल्स हैंडल करते थे, कितने बार आप लोगों में, आपके टीम के साथ में डिस्कशन होता था, क्लाइंट के साथ, ये सब चीजें वहां पे होता है। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। देन ऑब्वियसली क्यूए डिस्कशन फोरम होता है। क्यूए डिस्कशन फोरम बेसिकली व्हाट्सएप पे होता है। आप क्या करते हो, आपका जो क्वेश्चन आंसर है या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है, बेसिकली अगर असाइनमेंट की रिलेटेड भी पकड़ लो, असाइनमेंट भी हम देते हैं, हम हर वीक में असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, आपकी क्वेरीज असाइन करते हो, क्वेरी असाइन करते हो। क्वेरी असाइन करने के बाद में अगेन व्हाट्सएप पे, क्यों मैं बोल रहा हूँ पर्सनली मत कीजिएगा, अगेन पर्सनली प्रॉब्लम मतलब, हाँ ऑब्वियसली कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पर्सनली रिजॉल्व होते हैं, दैट्स फाइन। बट जैसे असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक पर्टिकुलर एरर है, या फिर जो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी आए, तो ऐसे केस में वो ग्रुप में डाल लेना है। ग्रुप में क्यों डालना है, वही क्वेश्चन शायद दूसरे को प्रॉब्लम हो, तो उसको वो भी एडवांटेज मिलेगा। सो लाइक दैट इट विल बी हैविंग विन विन सिचुएशन। ओके, आपको तो मिलेगा ही, बाकी को भी मिलेगा, लाइक दैट। अगेन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सेशन, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि पावर बीआई का
पावर बीआई का ड्यूरेशन, ओके, जो हमारा सेशन है इस पावर बीआई का ड्यूरेशन, थियोरेटिकल पार्ट देखो मैक्स मैक्स 30 डेज तक का होता है थियरी। उसके बाद में और आपको 45 डेज या 40 या 50 डेज का आपको बताया होगा। इट में ऑल्सो रिक्वायर बिकॉज उसमें फिर प्रोजेक्ट है एडिटेड, ओके, प्रोजेक्ट ऐड करके दिया है आपको। फिर उसके बाद में आपको असाइनमेंट्स है, ओके, फिर आपके क्योंकि प्रोजेक्ट भी आपको एक नहीं है, यू हैव 3 प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट को आप पकड़ लो, अगर इसे एक हफ्ते में, अगेन एक एक महीना नहीं लेना है हमें, हर एक का एक ही हफ्ता लेना है, 1 वीक मेरे को, तो भी आपका 15 डेज आराम से उसमें चले जाएगा। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको आपको देना है, तो अगेन 30 प्लस अगेन 15, 45 एनी हाउ जैसे आपको लग रहा है, इट विल बी अक्वायरिंग लाइक दैट। Okay, so it will have that much of consumption of your day. Let's say you'll be getting that lot of busy time over there. Schedule आपको बहुत busy रहेगा। Now every day वैसे हमारा सेशन होता है देखो 1 घंटे से, लेग से पकड़ लो कि 1.5 घंटा पकड़ लो, ओके, 1.5 आवर का आपका सेशन होगा। कहाँ से कहाँ होगा देखो, 7:30 से इट विल बी अप टू 9, मैक्स 9 PM, ओके, 8:30 9 PM तक सब होगा। तो ऐसे केस में अगेन 1 to 1 hour 1.5 आवर का सेशन है। अब आपका क्वेश्चन शायद हो सकता है कि क्या हम इतने सेशन या फिर इतने ही आवर्स में क्या हम पावर बीआई सीख लेंगे? देखो, आप पावर बीआई सीखोगे ना तो अपने को आपको 30 आवर्स काफी है। 30 आवर्स इज मोर देन इनफ। क्यों? देखो, सिखाने के लिए कैसे सिखाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मैंने सिखाना है ए इज इक्वल टू एप्पल। अब ये ए फॉर एप्पल एक बार देने के बाद में आपका काम है ना कि आप इसे कितने बार उसे गो को कितने बार उसे अंडरस्टैंड करोगे, उसे कितने बार रिपीट करोगे। सो टीचिंग अ पर्टिकुलर let's say topic or teaching a particular point function is very easy, it's very easy and it's very let's say fast, but उसके बाद में अप्लाई करते समय में क्वेश्चंस प्रॉब्लम जो होते हैं वो यहाँ पे आपको रिजॉल्व करके मिलेंगे। ओके, दैट इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन सिखाने के बाद में आपको, इसलिए मैंने कहा कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहेगा। If one feature, let's say if one function is taught to you, you have to repeat it again and again. Until unless you repeat it again and again, you will not understand or you will not be by hearting it. It's very important. Okay, for that. Then uh, ये तो आपको चलो मैंने बता दिया ऑलरेडी, विच इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद यू। मास्टरिंग एचआर राउंड्स, एचआर राउंड्स में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि मेक श्योर, देखो एचआर राउंड बेसिकली होता क्या है, देखो नेगोशिएशन स्किल होता है जहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकोगे, और आपका बिहेवियर कैसा होता है, पोस्चर कैसा होता है, ओके, आप बोलते समय किस तरह के वर्ड्स को एम्फोसाइज करते हो, क्या आपका वर्ड टोनिंग, क्या आपका वोकैबुलरी बेसिस में कम्युनिकेशन क्या सही होता है, कि वही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको रेज्यूमे सेट करने में जरूर हेल्प करेंगे कि किस तरह का रेज्यूमे अभी मार्केट में चल रहा है, ओके, कैसे आपको आपके रेज्यूमे को मेंटेन करना होगा, क्या कीवर्ड्स है, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे। सो यस, विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो। देन कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेस में देखोगे तो अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस। अच्छा, यहाँ पे वीडियो जो भी होता है ना, हम जो भी जैसे अभी लाइव सेशन अभी जो हमारा चल रहा है, ओके, दैट इज लाइव, ये लाइव सेशन है। इस लाइव सेशन को हम क्या करते हैं, हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, वी डू ऑलवेज रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड करने के बाद में, क्योंकि देखो हो सकता है अभी तो चलो ये डेमो सेशन है इसका नहीं, बट जब प्रैक्टिकल में हम जब आएंगे तो हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको कहीं जाके बाद में रेफरेंस लेना होगा। ओके, 10 दिन के बाद में हो सकता है, 20 दिन की है, हो सकता है महीने के बाद में हो। तो वहां उस वीडियो को आपको वापस से रेफरेंस करने के लिए मिले तो क्या होता है, आपको एक लेट्स से ड्राइव दिया होता है, फिर आपका पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे शेयर कर दिया होता है माइक्रोसॉफ्ट में ही, टीम्स के इसमें, तो आपको वहां से आप एक्सेस करके ले सकते हो। अगेन, इट इज नॉट एडिटेबल, इट इज नॉट डाउनलोडेबल, यू कैन नॉट डाउनलोड इट, बट यस यू कैन लिसन इट। अब आप बोलोगे सर फिर फायदा क्या, फायदा और बताता उसका क्या है। इसका रीजन है कि कुछ हमने पिछले समय में बाय ऑन हिस्ट्री बेसिस में हमने देखा है कि जो वीडियोस को एडिट या फिर जो ऑप्शन होता है जहाँ पे डाउनलोड वगैरह करने का, तो डाउनलोड कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, गलती से कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक किसी बंदे की गलती सब लोगों को भारी पड़ेगा। हाँ, अगर आपको अभी रिकॉर्ड किया हुआ सेशन आपको चाहिए, डाउनलोड ही करना है, तो कुछ नहीं करना है, उतने टाइम के लिए 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के जो भी आप रिकॉर्ड देख रहे हो, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, उसे क्या करना है, आपके सिस्टम में उसे रिकॉर्ड की कोई भी एक एप्लीकेशन आती है, उसे रिकॉर्ड कर लो, वो आपका हो जाएगा। ओके, सो दैट इज वन ऑफ अ मेथड, यू कैन डू इट। फिर उसके बाद में देखो, यस, यहाँ पे देखो जैसे बताया, पर्सनलाइज अटेंशन स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस। हम पावर बीआई को फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको हमने सेशन करा दिया, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि छोड़ देते भी देख लेंगे उनका उनका, ऐसा नहीं है। हम आपको एक प्रोजेक्ट अच्छे से स्टार्ट से एंड तक के बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं कि आपके मेंटर्स को बताते हैं, जो मेंटर्स होंगे उनको ही बताते हैं कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे आपने 2-3 इंटरव्यू फेस किए लेकिन आप उसमें नहीं हो पा रहे हो अटेंड, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो उसे ऐसे क्लियर, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कैसे नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी हम अच्छे से अटेंटिव रहते हैं। ओके, तो स्मॉल स्मॉल बैचेस की ट्रेनिंग भी हमने साथ में साथ रिवीजन में लेते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर जॉब असिस्टेंस तो चलता ही रहेगा। दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। ओके, सो एवरीथिंग इज बैकअप प्लान, so you don't have to worry, you will not get any hassle about it. And again, Power BI,
अब बात आती है, चलो पावर बीआई है क्या, समझ लेते हैं। ओके, पावर बीआई ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, इट्स अ ह्यूज ब्रांड। ओके, तो उनका एक प्रोडक्ट है, इसका नाम उन्होंने पावर बीआई रखा है। ऐसा पावर बीआई ही क्यों रखा है ना, इसके पीछे भी एक अच्छा हिस्ट्री है। हम टेक्निकल टर्म में आएंगे तो जरूर बात करेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई पावर बीआई। क्योंकि पावर बीआई रखा है ना, ऐसे क्यों नहीं रखा कि एच डी बीआई, ऐसे क्यों नहीं रखा कि फास्ट बीआई, व्हाई पावर। यस, उसके बारे में हिस्ट्री है, आई टेल यू दैट आल्सो। एंड अगेन इट्स अ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। अब इंटरैक्टिव डैशबोर्ड मतलब या डेटा सेट, इंटरैक्टिव विजुअल्स इसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और मुझे उसमें से ना गिने चुने डिटेल्स चाहिए, बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट होगी, बेस्ड ऑन सम आपकी कुछ एप्लीकेंट की बेसिस में होंगे। जैसे मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, कुछ ये रिकॉर्ड चाहिए, कुछ ये रिकॉर्ड चाहिए, होगा उसका कुछ रीजन। तो आप आपके इस विजुअल को, जो आपके सामने विजुअल आया है चार्ट, आप इसको क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से ना सॉर्ट करना, आपके हिसाब से उसे चेंज करना, आपसे फिल्टर करना, ये चीजें वहां पे कर सकते हो। उसको कहते हैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। अब आप बोलोगे ये तो सभी में कर सकते हैं। हाँ, सभी में कर सकते हैं, सभी बीआई में कर सकते हैं, लेकिन सब बीआई में कर सकते हैं, सबके सब बीआई में, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स में। आपको अगर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूं रिपोर्ट, क्या आप कर पाओगे इंटरेक्शन? नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डू दैट। सो कोई भी बीआई टूल होता है जो इंटरेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ये क्यों हेल्प करता है? ताकि आप आपके डिसीजंस ले सको। ओके, फॉर दैट। So BI is a process of using any BI tool which obviously helps you for the better decision making. Let's analysis can involve that, okay? And which obviously based on analysis, based on some patterns, based on some insights which will be provided by your visuals. Visuals मतलब basically graph. Visuals से मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राफ होता है, चार्ट्स होता है, जो आपको टैबलो फॉर्मेट में कभी मिल जाता है, लाइक दैट। नो, हम क्या क्या सीखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर बीआई के सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड अगेन इसमें हर एक चीज नहीं किया है, क्योंकि हर एक चीज लिखने के लिए पीपीटी बहुत छोटा हो जाएगा, इट वुड बी वेरी लॉन्ग, लेंदी हो जाएगा। ओके ओके, तो ओवरऑल टॉप अगर हम बोलेंगे कि चलो हाई लेवल सरफेस पे अगर बात करना है तो कैसे रहेगा। सो इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, इसमें पावर बीआई है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें कौन से फीचर्स है, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। देन आर्किटेक्चर, जैसे आर्किटेक्चर का डिटेल्स है, उसका प्लान क्या क्या होता है, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन नहीं, हमेशा ध्यान रखना, पावर बीआई टूल, कोई भी एक टूल बेसिकली ईटीएल प्रोसेस पे वर्कआउट करता है, पावर बीआई स्पेसिफिकली इसी पे करता है। अब ये ईटीएल है क्या? ईटीएल मींस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ओके, नाउ व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एंड व्हाई आई एम, लेट्स से, गिविंग यू दिस डिटेल, बिकॉज whenever you will get a data means basically क्या है, इस तरह का आपको एक शीट दिया होगा, सीएसवी हो सकता है, या फिर आपको किसी डेटाबेस से आपको निकालना होगा। ओके, इट विल बी लाइक दिस। या तो आप डेटा शीट से लो, सीएसवी फाइल फ्लैट फॉर्मेट से लो, या आप कहीं से भी ले लो, आपको क्या करना है, उसको सिस्टम में लेके आना है। जब सिस्टम में लेके आते हो, सिस्टम क्या करता है, वो डेटा को रीड करता है, इजंट इट? सिस्टम क्या करता है, आपके डेटा को रीड करता है। तो जो रीड करता है, रीड करते समय में आपका डेटा को, ये जो एक्सट्रैक्ट है, सोर्स से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, ये आपको पावर बीआई करके देता है। फिर बाद में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, जो प्रॉब्लम से डेटा के साथ में आप उसे रिजॉल्व करते हो, उसे ट्रांसफॉर्म, भी आप इसमें यहाँ पे रिजल्ट बनाओगे इस तरह से, ग्राफ या जो कोई भी, उसे हम कहेंगे लोड, ताकि आप इनसाइड ले सको। तो इस तरह से आपका क्या होता है, कोई भी एक बीआई टूल आपको हेल्प करता है ये काम करने के लिए। दैट इज व्हाट इट इज बीन। अच्छा, इसके अंदर में सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हम वो भी देखेंगे। देन डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन सा ग्राफ कहाँ पे यूज करना चाहिए, उसका एडवांटेज क्या है, यस विल डू दैट आल्सो। देन एक डैक्स करके है ऑब्वियसली, जो स्पेशलाइज, एक कह सकते हैं कि स्पेशलिटी है पावर बीआई की, डैक्स करके, जो आपको हर बार पावर बीआई में सुनने को मिलेगा। विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो व्हाट एग्जैक्टली मींस। डैक्स इज नथिंग बट डैक्स को अगर आप फुल फॉर्म में लिखोगे, डेटा एक्सप्रेशन, डेटा एंड इट्स एक्सप्रेशन। अच्छा, ई क्यों नहीं है? यस, ई को नहीं, उन्होंने एक्स को एम्फोसाइज किया। ओके, सो डी एक्स इस तरह से किया। सो इसका फुल फॉर्म है डैक्स, तो हम ये भी सीखने वाले हैं। देन विजुअल्स, ऑब्वियसली विजुअल्स तो आपको समझ आओगे, इट्स नॉट अ ह्यूज डील। ओके, बट किसी भी विजुअल में, जैसे ब्यूटिफिकेशन कहते हैं, है ना, देखो, ऑब्वियसली डोंट गेट, लेट्स से, जो भी अगर यहाँ पे कोई हमारे फीमेल कैंडिडेट्स है, या फिर जो भी जेंडर फीमेल में है, उसको प्लीज अनाय मत होना मेरे कहने से, बट एग्जाम्पल के स्वरूप में बता रहा हूँ मैं। कहते हैं ना कि देखो, एक किसी भी एक वुमेन को या फिर किसी भी लेडी को हम बिना मेकअप के देखें और मेकअप के देखें, तो होता क्या है, दोनों में ना थोड़ा अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। ओके, इन दैट सेंस विजुअल वाइज। तो विजुअल को सिंपल प्लेन विजुअल, और किसी विजुअल को आप अच्छे से फॉर्मेटिंग करोगे, तो दोनों में से अट्रैक्ट को लगेगा ऑब्वियसली
जो आपने फॉर्मेट अच्छा किया। ओके, सो इस तरह से तो फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ चार्ट बनाना नहीं है, बट उसे फॉर्मेट इनसाइट अच्छे से दिखाना है। ओके, फीचर्स दिखने चाहिए, उसके आउटपुट दिखने चाहिए। इन दैट वे हम आपको फॉर्मेटिंग भी बता दें किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा रेफरेंस हो सकता है। ओके, लाइक दैट। देन इंटीग्रेशन एंड एनालिटिकल, अगेन सिर्फ विजुअल्स बनाने तक होता नहीं है, कुछ कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो आपको एआई के स्वरूप में, ओके, बेस्ड ऑन दैट एआई हेल्प्स आपको आगे के फ्यूचरिस्टिक वैल्यू भी दिखाने को हेल्प करते हैं। जैसे लाइन चार्ट है तो आपको फोरकास्टिंग करने को मिलेगा, कुछ ऐसे डिटेल्स है तो आपको आगे के वैल्यूज को भी एनालिसिस करने का, अगर आगे के क्या होने वाले आपको फोरकास्ट करके भी देते हैं। ओके, और आगे के एनालिसिस करने में भी हेल्प करते हैं। देन डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, एडिशनल फीचर जैसे एआई वाले हैं, ये Q&A एआई का है। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये बेसिकली NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, आप नेट पे देख सकते हो। NLP मींस इट्स बेसिकली रिस्पॉन्स टू योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल करके होता है LLM, उसके साथ में भी काम होता है। सो इट्स अ ह्यूज डील विद इट। स्टिल इट इज वर्किंग ऑन, अगेन आपको पता होगा पावर बीआई में को पायलट करके है, वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगेन को पायलट फुल एंड फ्लेज यूज करने के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है, विच वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट। सो हमने क्या किया है, जो फ्री वाला है उस पर वर्कआउट किया है, बिकॉज एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड, लेट्स एवरी वन कैन नॉट हैव दैट।